यहाँ तक छोड़ जाता, we had to start off with concept of binary stars. Binary stars are basically, let's say, any two planets, you could say any two massive masses. Say a star is a massive mass, right? So they will basically perform circular motion about a fixed point. This is a new in इनकी खासियत, एक बात जो खासियत इनकी हो जाती है यार, वो ये है कि दे रोटेट, दे विल हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस, they will not collide with one another because they have the same angular velocity and are at a specific distance. क्योंकि मेरी एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो मैं कह दूंगा यार m1 r1 ओमेगा is equals to m2 r2 omega. ठीक है, we have established a fact that omega is the same, right, for both of them, right? m1 यहां से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया तो m1 अपॉन m2 is equals to r2 अपॉन r1 हो जाएगा. exact reciprocal of the masses. तो basically अगर आपको पिछला वाला मेथड आसान लगता है तो आप पिछले वाले मेथड से कर लो, अगर आपको ये वाला मेथड आसान लगता है आप इस वाले मेथड से कर लो, right? You just need to note that the force of gravitation will provide the centripetal force for the star to perform circular motion. ठीक है. अच्छा, इनके जो अच्छा, simple harmonic motion is basically a periodic motion. ठीक है. I'll just give you a simple example. Let's say a mass attached to a spring is an example of simple harmonic motion. What do I mean by a periodic motion? यार वो एक fixed axis के about move कर रहा होगा, right? Up down up down up down. By the way, I am assuming that there are no frictional forces as of now, right? एक और example हो सकती है यार a simple pendulum, कि वो एक fixed point के about घूम रहा है, oscillate कर रहा होगा, right? This is your one oscillation. एक बात याद रख लेना यार, for a body to perform simple harmonic motion, it must satisfy two basic conditions. One is that the acceleration should be directly proportional to the displacement, right? And both of them should be opposite to one another. As a matter of fact, अगर मैं मैथ से अगर ये एक बात वर्क ऑफ कर लूं कि अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो देयर इज अ कांस्टेंट कमिंग इन, राइट? और वो जो कांस्टेंट होता है वो बेसिकली हो जाता है ओमेगा स्क्वायर्ड. सो a is equal to negative omega squared x. This negative sign telling us that both of them are opposite to one another. Okay. Let's say examiner is giving me a question saying prove, वैसे तो prove करने का नहीं आता, but like let's just say you have a light source that is incident on a, you could say, a circular wheel, right? अच्छा, light जा रही है तो वो यहाँ पे एक shadow create करेगी, right? This entire thing is blocking light, right? Yes. For a minute I'm taking this part of the shadow. वैसे तो ये पूरा shadow आएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना part ले रहा हूं, ठीक है? I am simply breaking down. अच्छा, by the way एक बात बता दूं कि जब व्हील रोटेट कर रहा होगा तो उसका जो यहाँ स्क्रीन पे आ रहा होगा वो कुछ ऐसा मूवमेंट में आ रहा होगा, अप डाउन ऐसा लग रहा होगा, राइट? Yes. ठीक है. अच्छा, तो लेट्स से मेरे पास ये सर्कुलर व्हील है एंड द रेडियस इज बेसिकली एनी पॉइंट टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस इज द रेडियस, राइट? एंगल मैंने एक थीटा डिनोट कर दिया क्योंकि मैं यहां से लेके यहां तक का पार्ट ले रहा हूं, राइट? जस्ट फॉर माय ईज ऑफ रेफरेंस, ठीक है? इस वैल्यू को मैंने
इस वैल्यू को मैंने x कह दिया। क्लियर है? अगर मैं sin थीटा की बात करूं, sin थीटा डोंट यू थिंक फ्रॉम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इज x अपॉन r, Yes, it is. राइट? अच्छा, हमने सर्कुलर मोशन से एक बात पढ़ी थी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, Hmm. राइट? ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखो यार कि x सही है इज इक्वल्स टू, अगर यहां से तुम देखोगे r sin थीटा नहीं हो जाएगा? मैं उसको उधर ले जा रहा हूँ, r sin थीटा इज इक्वल्स टू x, राइट? Yes. मैं थीटा की जगह ओमेगा टी भी तो डाल सकता हूँ। Hmm. समझ आ रही है? Yes. तो यहां से मेरे पास आ गया, आई एम अज्यूमिंग यू हैव डन डिफरेंशिएशन, ठीक है? डिफरेंशिएशन में एक बात याद रखना, when I'm differentiating displacement, that becomes velocity, right? And I'm Yes. differentiating with respect to time. तो पहले तो तुम डिफरेंशिएट करोगे इस पार्ट को, मतलब कि पहले फंक्शन को करोगे, साइन डिफरेंशिएट होके कॉस बनता है, एंड देन यू विल डिफरेंशिएट बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? तो ये कांस्टेंट भी डिफरेंशिएट होगा। लेट्स से Okay. यू हैड 2t, राइट? तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमिलरली Yes. अगर इफ यू हैव ओमेगा टी तो उसका डिफरेंशियल ओमेगा हो जाएगा। सो Okay. सबसे पहला डिफरेंशियल इज cos ओमेगा टी एज इट इज आपने लिखा। नाउ यू डिफरेंशिएट द इंटरनल पार्ट, दैट इज Cos ओमेगा हो omega. जाएगा, या एग्जैक्टली, एंड आर जो था वो एज इट इज नीचे आ गया, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया। क्लियर है? Yes, clear. फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, तो वेलोसिटी आफ्टर डिफरेंशिएशन बिकम्स एक्सेलरेशन, राइट? नाउ व्हेन यू डिफरेंशिएट cost component, you will realize one thing, that it becomes minus sign, right? Fine. Yes. 2 मिनट, माइनस को मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फॉर माई ईज ऑफ रेफरेंस, ठीक है? साइन ओमेगा टी मैंने एज इट इज लिख दिया, ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया। नाउ द डिफरेंशियल ऑफ द इंटरनल पार्ट, ओमेगा टी है यार, मेरे पास आर ओमेगा था ऑलरेडी, आर ओमेगा multiplied by omega would provide me with negative r omega squared, right? Sine Yes. omega t, right? Now you need to understand one thing. Don't you think this part, this entire part is similar to this? Yes, it is. तो डोंट यू थिंक मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करता हूँ, a इज इक्वल्स टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर को मैं साइड पे कर देता हूँ और मैं उसकी जगह लिख दूंगा x। यहां से तुमने प्रूफ कर दिया a is equals to negative omega squared x. If I were to plot this equation, right, मेरा x on the x-axis and acceleration on the y-axis, negative gradient है यार, right? ये देखो ये y, ये मेरा x हो जाएगा, तो don't you think y is equals to mx हो जाएगा with a negative gradient, मतलब कि through the origin जा रहा होगा because there is no intercept, Yes. right? So any body that is following simple harmonic motion, right, should follow this graph, you could say, right? Meaning to say its acceleration should be directly proportional but directed in the opposite direction from the mean position. This is what the definition is. Simple harmonic motion की 2 से 3 मार्क के लिए definition आ रही होती है. By the way, your gradient is omega squared negative. ठीक है? I hope you understand this कि जो ये वाला part है, it is curved while this part is straight. So this is not simple harmonic motion. Clear है? Okay. Moving forward यार, हमने एक equation बना ली थी, x is equals to r sin omega t, right? If I were to plot a graph, तो वो एक sin graph हो जाता, right? Hmm.
ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखो यार कि जो एम्पलीट्यूड है उसको अगर मैं एक्स नॉट कह रहा हूँ तो आर की जगह मैं एक्स नॉट साइन ओमेगा टी भी उसको कह सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एक्स नॉट इज बेसिकली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली आपका मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इज कॉल्ड योर एम्पलीट्यूड। सही, क्योंकि एक्स तुम्हारा एम्पलीट्यूड था और एक्स तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट थी, तो एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई। मेरे पास जो था यहाँ पर इक्वेशन में साइन का फंक्शन आ रहा था, इसलिए मैंने साइन ग्राफ बनाया। ठीक है, Okay, हाँ. डिफरेंशिएट कर रहा था तो देखो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा था, तो मैंने उसको कॉस ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? Okay. फर्दर डिफरेंशिएट Fine. करता था तो मेरे पास एक्सेलरेशन आया था जो कि नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी था, एंड वी रियलाइज्ड that this entire part resembles your displacement, right? By the way, Hmm. साइन का ग्राफ है but there is a negative, तो आपका नेगेटिव साइन का ग्राफ रिवर्ट हो जाता है। ठीक है, all you need to know and understand is कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा फॉर एवरी ग्राफ। चेक कर लो। Okay. इसमें तुम्हारे पास मैंने एक्स नॉट कर दिया था, तो आर की जगह हमने एक्स नॉट ले सकते थे। तुम्हारा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है एम्पलीट्यूड है, ये वाला पार्ट जो है वो एम्पलीट्यूड है, राइट? तो अगर तुमसे वेलोसिटी मैक्सिमम कह दी जाए तो तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाली वैल्यू डाल सकते हो, एक्स नॉट ओमेगा। यू विल बी प्रोवाइडेड विद एंगुलर वेलोसिटी, नहीं तो आपको टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी दे दी गई होगी। ओमेगा ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन टी और 2 पाई एफ। तो यहां से तुम ओमेगा कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें ग्राफ वगैरह से मिल जाएगी और तुम Vmax निकाल सकते हो बाय ऑल मींस। वन थिंग, लेट्स से मेरे पास एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम को मैंने इस पोजीशन पे रखा हुआ था, वो रुका हुआ था। मैं उसको एक पुश देता हूं टुवर्ड्स इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम हाइट तक, अगर मैं उसको पुश देता हूं, राइट? ठीक है, और मैं उसको छोड़ता हूं, तो याद रखना वो कुछ यूं जाएगी, वहां पे मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगी। सही है, फिर वो इधर से जा रहा होगा और यहाँ पे वापस से मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा। ये बात समझ में आती है? Yes. नाउ दीस पॉइंट्स जहाँ पे मोमेंटरीली रेस्ट पे आ रही है, डोंट यू थिंक यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी? Hmm. तो अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है उसका? वो हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो गई। और ये बात समझ में भी इसलिए आती है बिकॉज ये तुम्हारी अगर मीन पोजीशन है तो इससे एक सर्टेन हाइट तक इंक्रीज कर गया है तुम्हारा पेंडुलम, एक सर्टेन हाइट तक चला गया है, राइट? Yes. राइट। अब अगर मीन पोजीशन पे आ रहे हो, अगर मीन पोजीशन पे आ रहे हो तो मीन पोजीशन पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, योर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, एंड देयरफॉर योर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो रही होती है। यहां तक अगर क्लियर है तो ये बात भी तुम समझ सकते हो कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम हियर, राइट? योर डिस्प्लेसमेंट is zero here because this is called the mean position. ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड एक्स। अगर तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। Okay. मैथ से तुम्हें एक बात पता है यार कि अगर मैं इनको स्क्वायर करता हूँ, साइन स्क्वायर्ड प्लस कॉस स्क्वायर्ड, तो वो जीरो इज इक्वल टू वन हो जाता है। सॉरी, साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर्ड ओमेगा टी is equals to 1. Sin squared theta plus cos squared theta is equals to 1. ये simple trigonometry identity है, right? Hmm.
if you're squaring this part, math में अगर you're squaring this part, right hand side को square करो तो left hand side को भी square करना जरूरी हो जाता है, right? Which brings you down to this form, right? Solving it, you will realize that तुम्हारे पास further जो formula आ रहा है, मतलब कि मैं अगर reduce वगैरह कर लूं तो मेरे पास जो formula है वो somewhat ये आ रहा होगा. इस फॉर्मूला की सिग्निफिकेंस समझ लो यार. अगर मेरे पास पेंडुलम है, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पे जा रहा है, राइट? इस दौरान कोई भी बीच वाली पोजीशन आ जाए, कोई भी लिटरली पोजीशन अगर आ जाती है, ठीक है, बीच की कोई भी पोजीशन आ जाती है, तुम वहां पे उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से. And this is not confined to just a simple pendulum, it is confined to any simple harmonic motion, this equation. ठीक है, तो ये सबके लिए वैलिड है यार. मैं तुम्हें बता दूं, velocity is equals to plus minus omega under root x naught is your amplitude. मतलब के एम्पलीट्यूड तुम्हारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन हो जाती है, राइट? whereas x is any displacement from the mean position. let's just say मेरे पास यार एक सिंपल पेंडुलम का केस गिवन है, राइट? आपसे कह रहा है यार कि उसका टाइम पीरियड जो था सिंपल पेंडुलम का 5 सेकंड्स था. यू आर अज्यूमिंग देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, राइट? अच्छा, from the mean position you are provided with the amplitude and you are asked to find the velocity 5 centimeters away from the maximum height या maximum position या फिर amplitude. एक ही बात. I am simply saying, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सर कट के आ रही है.